أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں اور ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں سے انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی، ہم کر رہے ہیں سورہ آل عمران اور اس کے اندر غزوہ احد کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی، اور آج جو ہم رکو اب ایک کو کمپلیٹ کر کے اور لاسٹ جو شروع کریں گے دیٹ از دا کنکلوڈنگ ڈسکشن آن غزوہ احد۔ پچھلا جو رکوع ہم کر رہے تھے جس میں لاسٹ ہم نے ڈسکشن کی تھی لاسٹ کلاس میں، وہ یہی باتیں تھیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے تھے، ان کو انسٹرکشنز دے رہے تھے کہ اب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو غلطیاں کر چکے تھے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور ہم نے دیکھے تھے انتہائی امیزنگ قسم کے لیڈرشپ کے لیسنز تھے جو کہ دیے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اب اسی اور اینڈ ہم نے اپنی بات کہاں پہ کی تھی کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا تھا۔ ہم نے پچھلے ہفتے کا کام بھی یہی دیکھا تھا کہ ہم نے ایسے کام کرنے ہیں، ایسی چیزیں رکھنی ہیں بس کہ ہر لمحے میں یہ سوچوں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا ہم نے دیکھا تھا کہ بہت آسان کام ہے، کوئی بڑے پہاڑ توڑنے کو نہیں کہا جا رہا، کوئی چلے کاٹنے کو نہیں کہا جا رہا۔ آپ صرف ایک پانی پی کے، پانی کا گھونٹ پینے کے بعد دل سے جب الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ اپنے کمفرٹیبل بستر پہ لیٹتے ہیں اور اس پہ لیٹ کے آپ کو جب سکون ملتا ہے تو آپ الحمدللہ دل سے کہتے ہیں، تو یہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں ہم نے یہ لیا تھا اپنا ہوم ورک کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ اور اس کام میں مسلسل لگے رہنا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ بھی کیا کہے گا جبریل علیہ السلام سے کہ آگاہ رہو اس شخص پہ میری رحمت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اب وہ لوگ جو کہ خیانت نہیں کرتے، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا تھا، ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، کہ ان کی بھی درجہ بندیاں ہیں، ان کے مختلف درجات ہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ جس طریقے سے نیک لوگوں کے درجے ہیں، ہم نے یہ دیکھا نا کہ دیکھیں جنت کے بھی درجے ہیں نا، ہر ڈفرینٹ ڈفرینٹ لیولز کی جنت ہے، اسی طریقے سے جہنم میں بھی لیولز ہیں۔ سب
बुरे लोग, सब बदकार लोग भी बराबर नहीं है, किसी के गुनाह ज्यादा हैं, किसी के गुनाह कम है। तो अल्लाह ने ये बता दिया कि अल्लाह के पास उनकी भी दर्जा बंदियां हैं, और अल्लाह हर एक के अमाल को देख रहा है। सही। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, दर हकीकत अल्लाह ने ये बहुत बड़ा एहसान किया है अहले ईमान पर, जब उनमें से उठाया एक रसूल जो तिलावत करके उन्हें सुनाता है उनकी आयत और उन्हें पाक करता है। अब देखिए ये चीज, ये आयत आप लोगों ने सुनी है तो शायद कोई बेल्स रिंग होंगी कि ये बात हम पहले भी सूरह बकरा में पढ़ के आ चुके हैं। ये रादर 2 दफा ये मजमून आ चुका है, ठीक है, सूरह बकरा के अंदर, कि ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। पहले हजरत इब्राहिम की दुआ थी, उन्होंने जो दुआ की थी अपने लोगों के लिए, अपनी ज़ुर्रियत के लिए, कि अल्लाह उनके अंदर एक नबी भेज, रसूल भेज, जो उनके उनके साथ उनको कुरान सिखाए, उन पे आयात की तिलावत करे, उन्हें हिकमत दे। और उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 18वें रुकू में दोबारा से भी यही बात की थी। अब तीसरी दफा ये चीज एहसान है अल्लाह का, जो अल्लाह हम पे गिनवा रहा है। इस बात को एहसान समझा के नहीं, हम लोग बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को, उनकी प्रेजेंस को अपनी जिंदगियों में, अल्लाह का। लेकिन अल्लाह हमें बार बार, अभी तक कुरान की हम सिर्फ तीसरी सूरा के ऊपर पहुंचे हैं, ठीक है। अगर सूरह फातिहा को हटा दें तो दूसरी बड़ी सूरा के ऊपर हम आए हैं, और अल्लाह अभी तक 3 दफा इस बात को, इस एहसान को हमें गिनवा चुका है। क्या एहसान? कि इतना बड़ा एहसान है अल्लाह का कि उसने हमें एक रसूल भेजा। और वो रसूल क्या करता है कि जब उन्हीं में से एक रसूल उठाया, ठीक है, जो क्या करता है, जो तलावत करके उन्हें अल्लाह की आयात सुनाता है, फिर उनका तज़किया करता है। तलावत के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि तलावत करके सुनाना क्या है, कि उनको सिखाना। एक एक होता है जिस तरीके से एक बाल्टी में अगर पानी है, ठीक है, और वो पानी अगर अचानक से पूरा का पूरा उंडेल दिया जाएगा, तो क्या ख्याल है कि वो नीचे जितना पौधा है उसके अंदर प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो पाएगा, या वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा, बाकी सारा इधर उधर बह जाएगा? जल्दी से जब अगर पूरा उंडेल देंगे तो बह जाएगा, जबकि अगर कतरा कतरा करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे तो वो प्रॉपरली उस पौधे में एब्जॉर्ब होगा। यही काम रसूल का भी है, कि वो आहिस्ता आहिस्ता तालीम देता है। वयु अल्लिमुहुल किताब, ठीक है, तालीम देता है किताब की। ऐसे तालीम देने का मतलब है कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों के हिसाब से, उनके तरीके से उनको सिखाता है, जितना ज्यादा वो सीख सकते हैं। तो ये वो हमें और इसी तरीके से वयुज़क्कीहिम, उन्हें पाक करता है, तज़किया करता है, ठीक है, अच्छी बातें बता के उनकी जिंदगियों में से गुनाहों को, खराबियों को निकालता है। वल युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, किताब के साथ साथ हिकमत भी सिखाता है। और हिकमत को क्या कहा गया है कि वो सुन्नत है, ठीक है। और यही इनकलाब नबवी जो है ना, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, उसकी 4 मेन चीजें हैं, 4 मेन एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले क्या आ गया? तलावत करना, ठीक है, तज़किया, पहले सुनाई आयात, फिर क्लेंजिंग की, लोगों के अंदर से गुनाह निकाले, तो तब उनके अंदर अच्छाइयां आई, और फिर उनको क्या से तालीम दी? किताब और हिकमत की तालीम, ठीक है जी। अवलम्मा अस्वाबतकुम मुसीबतुन, सॉरी, व इन कानू मिन कबलु लफी ज़लालिम मुबीन, ये पिछली आयत का लास्ट पार्ट रह गया था। व इन कानू मिन कबलु लफी ज़लालिम मुबीन, और यकीनन इससे पहले तो वो लाजमन खुली गुमराही के अंदर मुब्तला थे, कि जब तक रसूल की प्रेजेंस नहीं थी तब तक उससे पहले गुमराह थे, उस जमाने के लोग भी और आजकल के लोग भी। अगर सिर्फ बराए नाम मुसलमान रह भी रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में रसूल की प्रेजेंस नहीं है, उनकी सुन्ना को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना रहे, तो किसमें है? खुली गुमराही के अंदर है। यही इस बात को ना सिर्फ खुद के लिए याद रखिए, अपनी औलाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिए। देखिए, हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा पर्पस ये होना चाहिए कि हमने अपनी औलाद को ठीक राह पे करना है। हम अपना तो जो अमल कर रहे हैं सो कर रहे हैं, हम अपनी औलाद को अपने लिए अगर सदका जारिया नहीं बनाएंगे तो वो हमारे लिए गुनाहे जारिया भी बन सकते हैं। बहुत बहुत मेहनत करें, हम दुनिया की हर चीजों के ऊपर मेहनत करते रह जाते हैं,
इतनी एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन नहीं लगाते तो जहाँ पे जरूरत है एफर्ट लगाने की अपनी औलाद के अंदर, हम वहां पे ही एफर्ट नहीं लगाते। तो अल्लाह से इस चीज की बहुत ज्यादा दुआ किया करें, अल्लाह से बहुत मांगा करें कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अपनी औलाद में इन चीजों को कन्वे कर सकूं, अपनी औलाद को ठीक बना सकूं। क्योंकि अगर मैंने ये ना किया तो क्या होगी, वो खुली गुमराही में रह जाएंगे। अल्लाह ऐसा हम सबको और हमारी औलाद को गुमराही से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। ओके। अवलम्मा वलम्मा असाबतकुम मुसीबत, क्या जब तुम्हें एक मुसीबत आ पहुंची, हालांकि तुम उससे दो चंद पहुंचा चुके थे, तो तुम कहने लगे ये कहाँ से आ पड़ी। हुआ क्या था कि जिस टाइम के ऊपर मुसलमानों के ऊपर मुश्किल आई थी ओहद के वक्त, उनके ऊपर मुश्किल दुश्मन ने दोबारा से हमला कर दिया था, तो जो अकाबिर सहाबा थे वो तो समझ गए थे, लेकिन जो वीक सहाबी थे, वीक ईमान में वीक थे, उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया, कि अल्लाह ने पहले मदद की थी, बदर में तो मदद की थी, ओहद के स्टार्ट में भी मदद की थी, तो अब क्यों नहीं मदद आ रही। ठीक है, तो क्या कहा, कुल हुआ मिन इन दी आंफुसिकुम, ए नबी कह दीजिए ये तुम्हारे अपने नफ्सों की वजह से हुआ है, तुम्हारी अपनी ही तरफ से है, गलती तुमने की थी, अपने अमीर की खिलाफ वर्जी तो तुमने की थी, जिसका अब तुम खमियाजा भुगत रहे हो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह तुम्हारी मदद भी करने के काबिल है, तो वो तुम्हें सजा देने के भी कादिर है। आप ये बात देखें कि ये चीज अभी हम पीछे आयत नंबर 152 में भी पढ़ के आए थे ना, तो यहाँ पे ये रिपीट की जा रही है कि अल्लाह ने तो अपना वादा पूरा कर दिया था, लेकिन तुम्हें अब जो मुश्किल आई है वो तुम्हारी अपनी गलती की वजह से आई है। अल्लाह तुम्हें कोई सजा नहीं देना चाहता है, सही है, वो तो तुम्हें इवन बगैर सजा के भी माफ कर देता, लेकिन अल्लाह की हिकमत का ये तकाजा था कि तुम्हें इस वक्त सजा मिले। हम माए हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि अगर बच्चों को अपने बार बार अगर गलती कर रहे हैं और उनको सिर्फ हम माफ करते जाए ना, तो वो सीखते नहीं है फिर अपनी गलती से, वो उस गलती को रिपीट करते रहते हैं। यही हिकमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की भी थी कि एक दफा तकलीफ मिल जाए, ताकि उनको समझ आ जाए कि अब वो इतनी बड़ी गलती दोबारा नहीं कर सकते। अगर तुम इसी तरीके से इस इस अपने डिसिप्लिन को और अपने नज्म जब्त को तोड़ते रहोगे, अहकामात की खिलाफ वर्जी करते रहोगे, तो तब फिर वो एक कहते हैं ना कि वो एक जमात नहीं बन सकते, वो एक हजूम रह जाता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं, एक क्राउड ऑफ पीपल होता है। ग्रुप किसी भी मरहले को, किसी भी चीज को जीतने के लिए यू नीड अ कोहेरेंट ग्रुप, एक कंबाइंड एफर्ट चाहिए होती है, एक टीम वर्क चाहिए होता है। लेकिन अगर वो टीम वर्क नहीं होगा और हर कोई अपनी अपनी एफर्ट्स अपनी अपनी अलग अलग बना रहा होगा छोटी छोटी मस्जिदें, तो तब कुछ नहीं हो सकेगा। और यही चीज अल्लाह ने सिखाना था इस वक्त मुसलमानों को कि यू हैव टू बिकम अ टीम, यू हैव टू लिसन टू योर लीडर। हाँ अस्वाबकुम यौमल तकल जमआनी फबिइज़्निल्लाह, और जो भी मुसीबत तुम पर आई है उस दिन जब दोनों लश्कर आपस में भिड़ गए थे, तो वो अल्लाह के इज़न से आई है। ठीक है, वो अल्लाह के हुक्म से ही आई है, अल्लाह के इज़न के बगैर तो कोई तकलीफ नहीं आ सकती ना। इस ये भी हमारे देखें, इन आयात को हमेशा उस कॉन्टेक्स्ट में भी लें, लेकिन इन छोटे छोटे टुकड़ों को, इन एंडिंग्स ऑफ आयात को अपनी जिंदगी के लिए अपने लिए जरूर देखा करें कि यौमल तकल जमआनी फबी इज़्निल्लाह, हर चीज अल्लाह के इज़्न से आती है। कोई तकलीफ भी जो है ना वो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती है हमारे ऊपर। वलियालिमल मोमिनीन, और ये इसलिए थी कि अल्लाह जाहिर कर दे ईमान वालों को, कि ये जाहिर हो जाए कि कौन असल मोमिन है, कौन हकीकी मोमिन है। जो सब्र करेगा ऐसी सिचुएशन में वो वाकई हकीकी मोमिन होगा। और इसमें क्या हुआ था उहद में कि बिल्कुल क्लियर हो गई थी सिचुएशन। ठीक है, तो प्लीज आंसर सनिया टू हेल्प। वालियालदीना नाफिक, और ताकि इन लोगों को भी जाहिर कर दे जिन्होंने मुनाफिकत इख्तियार की, जो मुनाफिक हैं। क्या हुआ था, देखिए पहले लियालमा जो वर्ड है, ठीक है, देखें यहाँ पे क्या आया है तर्जुमा,
کہ ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے. بیسکلی لیعلما کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جان لے. پر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہے نا, اللہ تعالیٰ کو تو آلریڈی پتا تھا نا کہ کون ہے منافق اور کون ہے اصلی مومن. تو یہاں پہ اس وجہ سے ترجمہ ایسا کر دیا گیا کہ ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے, یا پھر ایسے لوگوں کا علم دے دے, یا ایسے لوگوں کو ظاہر واضح کر دے. ٹھیک ہے, میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ کے مصحف میں الگ جو جو ٹرانسلیشنز ہیں, تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ لفظی ترجمہ پڑھیں گے نا تو اس لفظی ترجمے سے یہ بامحاورہ ترجمہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے, اور پھر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے, کیوں ڈفرینٹ ترجمہ کیا ہوا ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ یہاں پہ لفظ جو وہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ جان لے, لیکن کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہی ہے, اللہ نے ہم پہ ظاہر کرنا تھا, اس لیے ترجمہ ہم نے کیا کہ ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں. ٹھیک ہے, اور ہوا یہ کہ اللہ نے وقتاً فوقتاً اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا, جب وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر چلا گیا تو سب کو نظر آ گیا کہ وہ تو منافق تھا. اب آئندہ اہل ایمان جو ہیں وہ اس کی بات پہ اعتبار نہیں کریں گے, کیونکہ اب کلیئر ہو گیا تھا. اس کی ایسی ایسی باتیں جب وہ آ کے کرتا تھا تو اس وقت تک کلیئر نہیں تھا, تو اب اٹ میڈ اٹ کلیئر کہ who is who and what is what. ٹھیک ہے, وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا, اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو, یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کرو. جس وقت ہوا یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کے جا رہا تھا, تو اس وقت اس کو کچھ لوگوں نے کہا کہ بے وقوف لوگ, تم لوگ کہاں جا رہے ہو, اس وقت لشکر سامنے ہے, 1000 لوگ تھے نا, اس میں سے اگر 300 نکل جائیں گے تو پیچھے والوں کے لیے تو مطلب 33% لوگ نکل رہے ہیں. صحیح ہے, تو پیچھے والوں کے لیے تو بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی, تو تم ایسا مت کرو. اور اگر تم میدان جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتے دشمن کا, تو کم سے کم ادھر رک کے مدینہ کا دفاع ہی کر لو, کیونکہ مدینہ میں تو پیچھے بھائی اگر مطلب ساری عورتیں تھیں, بچے تھے, تو تم کم سے کم اتنا ہی کر لو تو کہ تم مدینہ کو پروٹیکٹ کر لو. تو اس کے اوپر کیا ہوا, انہوں نے کیا کہا, قالو لو نعلم قتالا لاتبعناکم, انہوں نے کہا اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے. اب دیکھیں ذرا ان کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ تو صرف ایویں ہی تم لوگ شو آف کی لڑائی کر رہے ہو, یہ اصلی لڑائی تو ہو ہی نہیں رہی, یہ جنگ تو نہیں ہے. یہ جو مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو آئے تھے, یہ لوگ خود مکہ سے آئے تھے, ٹھیک ہے, اور اب باقی مکہ والے ہی ہمارے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ جنگ کرنے آ رہے ہیں. تو یہ تم مکہ والے تو آپس میں ساتھی ہو, ایویں میں ہم مدینہ والوں کو بیچ میں تم لوگوں نے گھسیٹ لیا ہے, تو اس لیے اس لڑائی سے ہمارا کوئی نہیں ہے کام, اس لیے ہم جا رہے ہیں. صحیح, ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تر تھے. آپ دیکھو کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو اللہ نے کلیئر یہ بتا دیا کہ اس دن وہ بے شک وہ ایمان کا وہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایمان ہے, لیکن اس ٹائم کے اوپر جب وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے تو 100% ان کو کافر نہیں کہہ دیا, کیونکہ اس میں سے بھی لیٹر آن کچھ لوگ واپس آ گئے تھے دین کی طرف. اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ ایسے میں وہ لوگ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. اینڈ what this آیت also shows is کہ ایمان جو ہے نا وہ ہمارا گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. ایمان کی کبھی بھی ایک کیفیت نہیں رہتی. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں تو آلویز بڑے ہائی لیول آف ایمان کے اوپر رہتا ہوں, تو بڑی مشکل ہے یہ بات. آپ سب نے اس چیز کو وٹنس کیا ہوگا. ڈیورنگ رمضان کتنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, کتنے جوش ہوتا ہے, کتنا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی عید آتی ہے, شوال آیا, تو شوال کے 6 روزے رکھنا ہی اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ رکھے ہی نہیں جاتے. ایک دم سے ایک ڈپ آ جاتا ہے ایمان کے اندر. اس وقت ہم اکثر برا بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ کیوں ڈپ آ گیا, بٹ دس از واٹ آور ایمان از. ایمان تبھی تو کیا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا, کیا دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے. صحیح ہے, کیونکہ آپ کا دل کے اندر ہی ایمان ہوگا. ایمان سم ٹائمز زیادہ ہو گیا, سم ٹائمز کم ہو گیا, اس چیز کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے,
تو इस चीज के ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करना है कि हमने इसके ऊपर वर्क करना है, हमने अल्लाह से दुआ करनी है। एक इसमें सुन्ना में दुआ भी बताई गई है ना कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल ईमाना ला यर्तद्दु, कि अल्लाह मैं आपसे ऐसे ईमान की दुआ करती हूँ जिसमें कभी इर्तदाद ना हो, जो कभी कम ना हो, वो वापस ना हो। व नईमन ला यनफजू, और ऐसी नेमतों का सवाल करती हूँ जो कभी खत्म ना हो। व मुराद फका मोहम्मदिन फिल आला जन्नतुल खुल्द, और हमेशा की जन्नतों के बुलंद हिस्से में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत का सवाल करती हूँ। तो ऐसी ऐसी दुआएं, सुन्ना की जो मसनून दुआओं की बुक्स होती हैं वो जरूर लें। बुक्स नहीं ले सकते तो जो मसनून दुआओं की किताबें होती हैं वो जरूर कोशिश करें कि लें, और उसमें से उन दुआओं को पढ़ा करें। इतनी खूबसूरत दुआएं होती हैं कि मतलब हम उन बातों के बारे में सोच भी नहीं सकते, और उन दुआओं को अपनी अपनी खुद भी याद करें, पार्ट ऑफ आवर योर रूटीन्स बनाएं। कि आप अल्लाह से इस चीज की दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं अगर इस वक्त अच्छा फील कर रही हूँ तो ऐसा ना हो कि मेरा ईमान एकदम से शैतान उसको उचक ले और अब मैं कहीं किनारा हूं और फिर मैं नीचे गिर जाऊं, और अगर मैं नीचे गिरी हुई हूँ तो उसको मेरे ईमान को वापस आगे बढ़ा दे। ठीक है, इस दुआ को मैं अलग से आपके पास साथ शेयर भी कर लूंगी इन केस अभी अगर जाहिर है आप लिख लें। ओके, सो वो ये अपने मुंहों से वो बात कर रहे हैं जो उनके दिलों में नहीं है, और अल्लाह उस चीज को खूब जानता है जो कुछ वो छुपा रहे हैं। मेरा इंटरनेट काफी ज्यादा डॉजी हुआ है। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़ादू लौ अताऊना मा क़ुतिलू, ये वो लोग हैं जो खुद तो, ये वो लोग हैं जिन्होंने बावजूद इसके कि खुद घरों में बैठे रहे अपने भाइयों की निस्बत कहा कि अगर वो हमारा कहा मानते तो ना मारे जाते। ये वही वाली बात जो कि हम पीछे अभी पिछले रुकुओं में करके आए हैं कि अगर हमारे साथ बैठे रहते इन लोग, यही मुशरिकीन ऐसे क्या कहते थे ना कि अगर ये ना ये जहाँ जाता तो ये ना मारा जाता, इसको ये नुकसान ना होता। तो अल्लाह ने क्या कहा, कुल फदरऊ अनफुसिकुमुल मौता इन कुंतुम सादिकीन। तो ए नबी, आप फरमा दें कि तुम अपने आप को मौत से बचा लेना अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम कह रहे हो ये बात की ये बात सच है कि कोई वो अगर तुम्हारे साथ रहते तो ना जाते, तो अगर उसकी मौत आई होती तो उसकी मौत उसको ले लेती, और अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम अपने आप को ही मौत से बचा के देखो। तुम अगर घरों में भी बैठे रहो कुछ भी कर लो तो तुम्हारी अपनी मौत से तो नहीं बच सकते। वला ताहसबन्ना लदीना फी सबीलिल्लाहि अमवाता, और हरगिज ना समझना उन लोगों को जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं कि वो मुर्दा हैं। ये भी बात हम पीछे सूरह बकरा में करके आ चुके हैं। बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़कून, बल्कि वो तो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिज्क पा रहे हैं। शादा और वो हयात जावदानी और इन नेमतों पर फरहा और शादां रहते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमा रखी हैं, और अपने इन पिछलों से भी जो ताहाल उनसे नहीं मिल सके, ठीक है, देख कर खुश होते हैं उन पर भी कि ना कोई खौफ होगा और ना वो रंजीदा होंगे, किसी किस्म की उनको कोई परेशानी हुजन नहीं होगा। वो क्या कर रहे हैं, यस्तबशिरून बिनेमतिन मिनल्लाहि व फद्लिन, वो खुशियां मना रहे हैं उन नेमतों के ऊपर जो अल्लाह की तरफ से उनको मिल रही हैं। व अन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुमिनीन, और इस बात पर कि अल्लाह ताला अहले ईमान को अजर जाया नहीं करता। एक्चुअली ये तीनों आयत इसलिए मैंने इकट्ठी पढ़ दी कि ये उसी पुराने टॉपिक जो हम डिस्कस कर चुके हैं उससे रिलेटेड है। और हुआ ये था कि जब बहुत सारे सहाबी शहीद हो गए थे, और क्या कहते हैं कि लोग बहुत अफसुर्दा थे, एक सहाबी के वालिद की डेथ हो गई थी, पीछे से उनकी बहनें थी और उनको समझ नहीं आ रही थी अब क्या करें। तो क्या था कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सहाबा कराम को कि जब तुम्हारे भाई उहद में शहीद कर दिए गए तो अल्लाह ने उनको सरसब्ज परिंदों की शक्ल में बना दिया जो जन्नत की नहरों पर आते हैं, वहां के फल खाते हैं,
और सोने की उन कंदीलों में लौट जाते हैं जो अर्श के साए तले लटक रही हैं। जब उन्होंने वहां के खाने पीने और राहत के मजे देखे तो कहा, क्या कहा, कौन है जो हमारा ये पैगाम हमारे भाइयों तक पहुंचा दे कि हम जन्नत में जिंदा हैं और हमें रिज्क दिया जाता है, ताकि वो ये पैगाम क्यों पहुंचाएं, ताकि वो जहाद से बेरगबत ना हो जाएं और लड़ाई में बुजदिली ना दिखाएं। ये वो बात थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सहाबा को बता दी इस इन आयत के नाजिल होने के बाद, कि जो वो हैं जो जो शहीद हो जाते हैं उनकी जिंदगी वहां पे होती है। अब वो जिंदगी हकीकी है या मजाजी है, अल्लाह की आयत ये बताती है कि वो हकीकी जिंदगी है। ठीक है, हमें वो नहीं समझ आ सकती बिकॉज ऑब्वियसली ये मुतशाबिहात में से है कि वो कैसे रह रहे हैं, उनको कैसे रिस्क दिया जाता है, कैसे वो परिंदों की शक्ल में होती हैं। तो ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जब हम जन्नत में जाएं तो हम उन शहीदों को देख के हम खुद उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे और उस वक्त हमारी सारी कंफ्यूजन इंशाअल्लाह अजीज दूर हो जाएंगी। जी, अब जो आगे आयत आ रही हैं, बिफोर वी रीड ऑन टू द तर्जुमा, मैं आपको ये बता दूं कि देखिए ये बेसिकली समझ लें कि उहद के ये दो दो वाकयात हैं तारीख के जिनसे इन आयात को रिलेट किया जा सकता है। सही, पहला है कि ये उहद से वापस आने के नेक्स्ट डे जो था उसकी बात है। ठीक है, और वो है क्या कि देखें कि कुफार की फौजें जब वापस चली गई थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अब वो लोग चले गए हैं पर वो वापस आ जाएं, बिकॉज कुफार ऑल्सो न्यू कि मुसलमानों की क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो रसूलुल्लाह को इस चीज का ख्याल आया कि ये ना हो कि वो लोग वापस पलट के आ जाएं हम पे हमला करने के लिए। सो वी नीड टू गो आउट ऑफ मदीना अगेन एंड डिफेंड मदीना। ठीक है, और एक्चुअली हुआ ये था कि वहां पे अबू सुफियान को और बाकी जो कुफार थे उनको इस चीज का थोड़ा आगे जाकर ख्याल आ भी गया था, और उन्होंने सोचा कि हम कितनी बड़ी गलती कर आए हैं कि मुसलमान इतने मुश्किल इतने बुरे हाल में थे तो हम अभी ही उनको वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देते। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी इस तरफ आना शुरू किया, वापस मदीना की तरफ, ताकि मुसलमानों के ऊपर हमला करें। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का ख्याल आया तो उन्होंने सहाबा कराम को दोबारा से हुक्म दिया कि गेट रेडी। अब देखिए कि सिचुएशन याद करें कि उहद के बाद क्या थी, मुसलमानों की कितने जख्म लगे हुए थे, कितने लोग मरे हुए थे, कितनों को प्रॉब्लम्स थी, हर तरफ गम था। पर उस टाइम के ऊपर वाज द बिगेस्ट बिगेस्ट टेस्ट ऑफ सहाबा कि कौन है जो उस टाइम के ऊपर लब्बैक कहता है रसूल की कॉल के ऊपर। ठीक है, और उस वक्त जिन सहाबा ने कॉल दी उनके साथ अल्लाह ताला ने बड़े बड़े एहसानात उनके ऊपर किए। इस चीज को हमराउल असद, गजवाए हमराउल असद कहा जाता है, क्योंकि हमराउल असद वाज द प्लेस के जहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा के साथ मिलके गए थे। ठीक है, अब इस आयत को पढ़ते हैं। जिन लोगों ने जख्म खा चुकने के बाद भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा, उनमें जो साहिबाने एहसान है, आप देखें अल्लाह उनको कह रहे हैं साहिबाने एहसान के, उन्होंने अल्लाह पे एहसान किया और परहेजगार हैं, उनके लिए बड़ा अजर है। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि अल्लाह ने ये बात कह दी, और हुआ ये कि जब रसूलुल्लाह ने ये कॉल दी थी ना तो मुसलमानों को बहुत मुश्किल हुआ। इट वाज रियली डिफिकल्ट कि आप सोचें एक जंग से अभी हार के आए हैं और इतना ज्यादा जख्म खाए हुए हैं सब चीज, और उसके बाद दोबारा तैयार हो जाना जाने के लिए। तो ये बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे नहीं भी बात मानी। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने बात मानी थी उनको अल्लाह ताला यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि ये इतना बड़ी बात है कि उन लोगों ने बात मानी, तो वो उन्होंने बहुत एहसान किया और उनके लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा अजर दिया है। सही, तो एक तो ये वाकया हो गया। दूसरा वाकया क्या है कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि जब ओहद से जा रहे थे तो उस वक्त अबू सुफियान ने कहा था कि हम अभी तो जा रहे हैं और अगले साल बदर में दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है, कि जो बदर का मकाम था उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर अब हम दोबारा आएंगे। ठीक, तो हुआ ये था कि अब अगले साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये किया था कि तकरीबन 1500 सहाबा को लेके दोबारा बदर के मकाम पे गए थे कि ओके ठीक है, अब उसने कॉल दी थी तो हम दोबारा लड़ने के लिए जा रहे हैं, और इस मुहिम को बदर सुगरा कहा जाता है क्योंकि ये छोटा बदर। सही है, पर हुआ क्या था कि अबू सुफियान भी जो है वो अराउंड 2000 लोगों को लेके
आए थे, सही। और उन्होंने इस दफा भी यही किया था कि मुसलमानों में बड़ा खौफ व रास फैलाने की कोशिश की थी कि लश्कर बहुत बड़ा है, ये है वो है, तुम लड़ाई नहीं कर सकोगे। लेकिन मुसलमानों ने तवक्कल किया था। और ये आयत इसीलिए कहा जाता है कि आइदर उस मौके के लिए भी आ सकती हैं या इस मौके के लिए भी। उस मौके पे एक्चुअली हुआ ये था कि लेकिन लड़ाई नहीं हुई थी, मुसलमान वहीं से ही बगैर लड़े, कुफार भी वापस चले गए थे और मुसलमान भी वापस आ गए। ठीक है। अच्छा, सो जिन लोगों ने अल्लाह के हुक्म पे लब्बैक कहा वो मोहसिनीन और मुत्तकीन है, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। ये वो लोग हैं कि जिनसे जिनसे लोगों ने कहा कि मुखालिफ लोग तुम्हारे मुकाबले के लिए बड़ी कसरत से जमा हो चुके हैं। अब हो ये रहा था कि जो जो मुनाफिकीन थे वो उनको डरा रहे थे कि वो बहुत बड़ा लश्कर है, वो लोग बहुत सारे हैं जो तुम्हारे अगेंस्ट आ चुके हैं, ठीक है। सो उनसे डरो। तो इस बात ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और वो कहने लगे हमें अल्लाह काफी है और क्या ही अच्छा का साज है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आप देखें कि उनको जब डराया गया ना, तो उस डराने के ऊपर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम डरेंगे नहीं, हमारा ईमान कम नहीं हुआ, रादर उनका ईमान और ज्यादा बढ़ गया। और उन्होंने क्या, वो अगेन वो हिस्टोरिकल अल्फाज कहे जो कि सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहे थे, हस्बुनल्लाहु व हस्बी अल्लाहु व नेमल वकील। ये वो अल्फाज हैं, ये वो समझ लें कि हमारी आज के क्लास का मेन तरीन लेसन है, हस्बी अल्लाहु व नेमल वकील, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना। ठीक उस वक्त उन सहाबा ने देखे, उनको अभी जख्म खाए हुए थे, मुश्किल में थे, परेशानी में थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? इतना बड़ा डर का मौका आया तो उस डर ने उनको नीचे नहीं होने दिया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अल्लाह पे तवक्कल किया। और अल्लाह पे तवक्कल की ही ये पावर है कि जब आप सारे असबाब को छोड़ के आप अल्लाह के ऊपर तवक्कल कर लेते हैं ना, तो अल्लाह फिर आपको थाम लेता है। हर गम, हर मुश्किल, परेशानी, डिप्रेशन, जब कहीं कुछ नजर ना आ रहा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो उस वक्त हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। जितनी चीजें और हो जाए, जो हो जाए। हजरत इब्राहिम को जिस वक्त आग में डालने लगे थे, तो उस वक्त आके हजरत जिब्रील ने पूछा था ना, तो उस पे उन्होंने कहा था कि नहीं, क्या अल्लाह देख रहा है ना। आखिरी अल्फाज ये थे कि जब अल्लाह देख रहा है तो फिर हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। इतनी बड़ी आग को जिस अल्लाह ने उनके लिए गुजार कर दिया, ये उनका उनका तवक्कल का लेवल था ना। अल्लाह पे तवक्कल तो वो चीज है कि देखिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो तलवार लेके वो खड़ा हो गया था, एक शख्स उनके गले के ऊपर तलवार तान के, कि बताओ अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, तो रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया? सिर्फ अल्लाह। क्योंकि ही न्यू कि अल्लाह की जात वो है जो बचा सकती है। दिस वॉज द लेवल ऑफ तवक्कल। तो अपनी जिंदगियों में हमने क्या करना है? हमने अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना है। मैं चाह रही हूं अगर कुछ करना, तो अल्लाह की जात है जो वो मुझे करवाएगी। मैं अगर कोई नेकी का काम करना चाह रही हूँ, तो अल्लाह है जो कि मेरी मदद करेगा। ठीक है। हर मेरी मुश्किल में, हर परेशानी में, बच्चे गिरने लगे हैं, कोई डर का मकाम आ गया है, तो फौरन हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है, अल्लाह मेरे लिए काफी है। ठीक है। तो हस्बी अल्लाह को अपनी जिंदगी का पार्ट बना लें। और जब पढ़ें, हमारा एक ये भी मसला है कि हम दुआओं को इनको पढ़ते जरूर हैं, लेकिन हम सिर्फ पढ़ते हैं, जबान से पढ़ते हैं। हमने उनको दिल से समझ के पढ़ना है कि अल्लाह की वो जात है जिसको मैं अपना अपना वकील बना रही हूँ, वो है कि जिसने उस आग को ठंडा कर दिया था। तो अगर मैं भी उतना ट्रस्ट करूंगी अल्लाह के ऊपर, तो अल्लाह मेरे लिए भी मेरे इस काम को कर देगा। ये सोच के आप 100 तस्बीहां मत पढ़ें, एक दफा पढ़ें, लेकिन समझ के दिल से अल्लाह से कनेक्शन बना के पढ़ें। जब आप अल्लाह से कनेक्शन बना के, अल्लाह से ताल्लुक बना के पढ़ेंगी, तो उस पढ़ने की वैल्यू ही अलग होगी इंशाअल्लाह अजीज। फिर वो मुसलमान अल्लाह के इनाम और फजल के साथ वापस पलटे, उन्हें कोई गजंद ना पहुंची और उन्होंने रजाए इलाही की पैरवी की, और अल्लाह बड़े फजल वाला है, वल्लाहु दुल फजलिल अजीम। क्या हुआ था कि मुसलमान जब इस तरह हमराउल असद तक गए थे, तो वहां पे जाके 8 दिन तक मक्का से निकले थे रसूलुल्लाह, 2 दिन का सफर करके हमराउल असद पहुंचे थे। ठीक है।
اور کیا ہوا تھا بدر، سوری یہ سیکنڈ جب ہمراء الاسد نہیں، میں بدر کا اس کا بتا رہی ہوں کہ مسلمان ادھر پہنچے تھے، یس بدر کے مقام پہ، اور انہوں نے وہاں پہ 8 دن تک انتظار کیا تھا کفار کا، صحیح، اور لیکن کفار نہیں آئے تھے. جب کفار نہیں آئے تھے تو تب ڈیورنگ دیٹ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی تجارتی قافلہ گزر رہا ہے، ضرورت ہے تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ انہوں نے ٹریڈنگ کی، ان سے چیزیں لی، ان کو آگے بیچا، جس سے مسلمانوں کو بہت سارا فائدہ ہوا، اور اس فائدے کو پھر باقی صحابہ میں سب میں تقسیم کر دیا گیا تھا. تو وداؤٹ ایون فائٹنگ، وداؤٹ ایون ہیونگ ٹو فائٹ، مسلمانوں کو فائدہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے انعام اور فضل. انعام تو ان کو یہ ملا کہ اللہ نے ان کو فائٹ نہیں کرنے دی اور ان سے ہیپی ہو گئے. فضل کیا ہے؟ ان کو وہ جو فائدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی. 4 چیزوں کا دیکھیں یہاں پہ مینشن ہے. پہلا، ان کو انعام ملا، فضل کے ساتھ لوٹے، پھر کیا ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، صحیح، اور پھر کیا، اور پھر چوتھی چیز کیا کہ رضائے الہی کے ساتھ واپس لوٹے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا کہ انہوں نے، اللہ ان سے خوش ہو گیا کہ جب انہوں نے اللہ کی بات مانی اور اتنی مشکل حالات میں بھی جا کے دوبارہ سے لڑے، تو تب اللہ نے ایونچولی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن جب یہ سب انسان کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بے شک یہ مخبر شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے. جس ٹائم کے اوپر مسلمان جانا چاہ رہے تھے تو وہ بار بار مشرکین ڈراتے تھے، بار بار ٹینشنز کریٹ کرتے تھے، آپس میں پرابلمز مسلمانوں کے لیے بناتے تھے، مسلمانوں کو ڈراتے تھے. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ یہ شیطان ہی ہے. سمجھ جاؤ یہ جو تمہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے یہ شیطان کی چال ہے. جب بھی کوئی تم نیک کام کرنے لگو گے تو کیا ہوگا؟ شیطان تمہارے سامنے آ جائے گا، وہ تمہیں ڈرائے گا. وہ تم کوئی سٹیپ اللہ کی طرف لینے لگو گی نا اگر، تو وہ تمہارے سامنے آ جائے گا. نہیں 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 نہیں، اگر تم نے یہ اسکارف لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ تو تمہاری تو فرینڈس تمہیں چھوڑ دیں گے، لوگ تمہیں پارٹیز میں بلانا چھوڑ دیں گے. اگر تمہارے ہسبینڈ نے داڑھی رکھ لی تو ہاں ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس کی کمپنی والے اس کو نکال دیں گے. اگر تم نے سود کا کاروبار ختم کر دیا تو پھر تو تم لوگوں کو لاس ہو جائے گا، پھر تو تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے، تمہارا بچے کیا کھائیں گے؟ بچے بھوکے مر جائیں گے. ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی، اپنی زندگیوں میں شیطان کی پریزنس کو بھی فیل کرنے کی کوشش کیا کریں. یہ دیکھیں کہ کیسے کیسے شیطان جو ہے نا وہ آتا ہے سامنے. اور جب بہت دفعہ شیطان خود تو ہمارے دلوں میں وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے نا، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی صورت میں بھی آتا ہے. وہ انسان وہ ہوتے ہیں جو کہ شیطان کے ہی چیلے ہوتے ہیں. شیطان ان کے تھرو آ کے، فار ایگزامپل آپ سوچ رہی ہیں کہ میں اسکارف کرنا شروع کر دوں، آپ کی کوئی سہیلی آئے گی آپ کو کہے گی آئے ہائے کیسی باتیں کر رہی ہو، کس پرانے زمانے کی، بتاؤ مجھے ذرا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جی سر کے اوپر وہ ڈالنا چاہیے، وہ تو صرف رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں تھا. تم تو ایم ہی یہ کر رہے ہو، کیا پرانے زمانے کی باتیں کرتی ہو، اتنی اللہ نے کوئی مشکل نہیں ڈالی. میرے تو سر میں درد ہو جاتا ہے، مجھے تو بڑی گرمی لگے گی. تم اتنی گرمی ہوتی ہے تمہیں پسینہ نہیں آئے گا؟ ڈینڈرف ہو جاتی ہے سر کے اوپر، اسکیلپ اتنا خراب ہو جاتا ہے، ساری تمہارے بالوں کی دیکھو ساری اتنا، نہ تمہارا ڈائی نظر آئے گا، نہ تم نے اتنی اچھے پیسے دے کے جو تم نے اپنی اسٹریکنگ کروائی ہے وہ تو دیکھے گا نہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ تو جب اس طرح آپ کو کبھی کوئی کچھ کہے نا تو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ تھنک یہ اس وقت شیطان ہے جو کہ اس بندی کے تھرو آپ سے بات کر رہے ہیں. شیطان ہے جو کہ ان میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی سہیلی شیطان ہے. بیسکلی شیطان جو بھی ذرا سا کم ایمان پہ ہوتا ہے تو اس کو ایزیلی ورغلا لیتا ہے، اور اس کے تھرو جو دین کی طرف آ رہا ہوتا ہے، جو کوئی بھی نیکی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو خراب کرتا ہے، اس کا دل پریشان کرواتا ہے، اس کے اپنے اس سے کیا دھمکاتا ہے. تو اللہ کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تخافوہم، پس ان سے مت ڈرا کرو. کیوں ان سے مت ڈرا کرو؟ کیونکہ اگر ان سے نہ ڈرو تو پھر کس سے ڈرو؟ خافونی، مجھ سے ڈرو. کیوں؟ کیونکہ میرا عذاب ہے جو کہ تمہیں مل سکتا ہے. وہ کوئی مشکل نہیں، وہ کوئی تمہارے لیے تمہیں عذاب نہیں دے سکتے، وہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں کھڑی کر سکتے.
عذاب میں دے سکتا ہوں، اس لیے ڈرنا ہے تو میرے عذاب سے ڈرو، ان کن تم مومنین، لیکن تم ڈرو گے صرف تب جب تم مومن ہو گے. ٹھیک ہے. جو لوگ کفر کی مدد کرنے میں بہت تیزی کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو وہ آپ کو غمزدہ نہ کریں. وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ٹھیک ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے. ہوتا کیا تھا دیکھیں کہ کاف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو، ایک منٹ سوری، میں بیچ میں سے ایک آیت مس کر گئی ہوں کیا؟ ہاں ٹھیک ہے سوری. یس، آیت نمبر 176. یا سو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اس وقت کفر میں بڑے تیز بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا، جو بڑی تیزی سے آگے آگے غلط غلط کام کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے غم کا باعث نہ بنے، وہ آپ کو غمزدہ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ وہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے ہیں. اللہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ہوتا یہ تھا کہ اس ٹائم کے اوپر نا مدینے کے اندر یہود اور مشرکین نے ایک ٹینشن ڈال کے رسول اللہ کے لیے رکھی ہوتی تھی. ہر وقت they would always be in the lookout for creating some kind of problem. مدینہ کے اندر بھی مسئلے کہہ رہے ہوتے تھے، مدینہ سے باہر جا کے بھی ڈفرینٹ کافروں کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی تم لوگ حملہ کر دو، ہم تمہیں ساتھ دیں گے، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، things like that. تو اس پہ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ بی اویئر کہ وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، اور اللہ چاہتا ہے یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. ابھی انہوں نے جتنا کوئی بھی خرابیاں کرنی ہے کر لیں، زیادہ سے زیادہ خرابیاں کر لیں تاکہ آخرت میں ان کو خوب سزا ملے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تو بڑا عذاب تیار ہے. بے شک جنہوں نے بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ کافر یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے. آج کل کی بھی دنیا میں یہی ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ایون جو بہت دیندار نہیں ہوتے، غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ کچھ سمجھانے کی کوشش کریں نا تو وہ کہتے ہیں لو اللہ تو ہم سے اتنا خوش ہے، اگر خوش نہ ہوتا تو اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہوتی، وہ ہم اتنی اچھائیوں اتنی آسانیوں میں رہ رہے ہوتے. اگر ایسی بات تھوڑی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے اسی لیے تو ہم اتنی زیادہ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. اگر ناخوش ہوتا تو وہ ہم سے یہ چیزیں لے لیتا. تو ایسوں کو اللہ نے کیا جواب دیا ہے کہ وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دے رکھی ہے یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کیا چاہتا ہے، ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہے. سو جو گناہ کرتے ہوئے بھی اس ڈھٹائی کے اوپر رہتا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں، دیکھو اتنا سب کچھ تو مجھے ملا ہوا ہے، اگر میں کوئی برا بندہ ہوتا، اگر میں برے راستے پہ ہوتا تو یہ چیزیں میرے پاس نہ ہوتی. تو وہ یہ چیز سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کیے ہوئے ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ گو ڈگ یور گریو ایون ڈیپر، کہ تم اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اور سے اور گناہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ برائیاں کرتے جائیں تاکہ اپنے آپ کو اور سے اور عذاب کے اندر بھرتے جائیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی اتنی بڑی آزمائش آ جائے نا اچانک سے، تو وہ آزمائش اور جس کی وجہ سے وہ باقی سب کچھ بے شک اس کا چھوٹ گیا لیکن وہ اللہ کی طرف واپس آ گیا، تو وہ آزمائش اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی رسی دراز نہیں کی، اللہ نے اس کی رسی کو واپس کھینچا تاکہ وہ اللہ کی طرف آئے. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ کی جو ڈھیل ہوتی ہے نا اس کو ڈھیل سمجھنا چاہیے، اس کو اپنے لیے کوئی نعمت نہیں سمجھنا چاہیے. صحیح سورہ توبہ میں بھی آتا ہے کہ اے نبی ان کے مال اور اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈال دیں. ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دے اور جب ان کی جان نکلے اس وقت بھی یہ کافر ہوں. صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب چیز سے بہت دور رکھے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین، ہائے اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ رکھے مسلمانوں کو اس حالت میں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے الگ الگ کر دے. اب دیکھیں یہ چیز اگین
आजमाइश को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें अल्लाह ताला अपने नेक और जो साले लोग होते हैं ना उनको तकलीफों में क्यों डालता है। अल्लाह तो कादिर मुतलक है ना, वो तो जो चाहे एक चुटकी बजाने में कर सकता है ना। कितनी दफा ये अल्फाज हमारे जहनों में भी आते हैं, आपने सुने भी होंगे कि अल्लाह तो कर सकता है, अल्लाह तो दुनिया की मुश्किलात खत्म कर सकता है, तो क्यों अल्लाह ने इतनी दुनिया में भूख रखी हुई है, क्यों किसी का बच्चा अब नॉर्मल पैदा हो जाता है। तो यही बात समझना जरूरी है कि बेशक अल्लाह कादिर मुतलक है, लेकिन बात ये कि कहा इस आयत में ये जा रहा है कि अल्लाह की हिकमत के बात के मुताबिक नहीं है ये चीज कि वो तुम्हें उसी हाल में छोड़ रखे जिस पर तुम हो। सहाबा को समझाया कि अभी तुम्हारे अंदर एक कमजोरियां हैं, ठीक है। वो क्या है कि कमजोर ईमान वाले और पुख्ता ईमान वाले आपस में मिक्सअप हुए हैं, ठीक है। तो जब तक अल्लाह की इस वक्त तकलीफ देने की क्या मकसद था कि जब तक इन दोनों मोमिन और मुनाफिकों को अलग अलग नहीं कर दिया जाएगा ना, तब तक तुम एक जमात नहीं बन सकोगे। और आगे आइंदा आने वाली जो और मुश्किल सिचुएशंस हैं उसके लिए तुम तैयार नहीं हो सकते। सही, अभी तो इतनी रोम से लड़ना था, कैसर और कसरा से लड़ना था, अरब में इतनी बड़ी बड़ी जंगें होनी थी, तो उसके लिए अल्लाह ताला वांटेड कि मुसलमानों की जो जमात है वो इंतहाई स्ट्रांग हो, पक्के मोमिनीन हो। सही, तो इसलिए मुसलमानों को क्या हुआ, अल्लाह ने ओहद के अंदर सेकंड जंग की जो मुसलमानों की हुई उसके अंदर अल्लाह ताला ने इतना एक बड़ा एक सेटबैक मुसलमानों को दिया। और उस सेटबैक देने की वजह क्या थी कि मुसलमान मोमिन और मुनाफिक अलग अलग छट जाएं। और अल्लाह वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, और अल्लाह ताला का ये भी तरीका नहीं कि तुम्हें गैब की खबरें बताए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये वो बात है कि ये बात समझ लें कि अल्लाह किसको कह रहे हैं, रसूल अल्लाह को फरमा रहे हैं कि उनको मुसलमानों को समझा दो ये चीज कि अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि गैब की खबरें बताए, लेकिन इस काम के लिए अल्लाह मुंतखब कर लेता है अपने रसूलों में से जिसको चाहता है। अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहता है गैब की बातें बता देता है। रसूलों को खुद मालूम नहीं होती, रसूल अल्लाह को गैब का इल्म नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मुसलमानों को अपने अंदर ठीक करने की जरूरत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं है, ठीक है। अल्लाह चाहता है जो बात वो उनको बता देता है। यानी जो आजमाइशों में क्या हिकमतें हैं, क्या क्या चीज होने वाली है, किससे क्या इम्पैक्ट होगा, शुरू में पहले पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता होता, ठीक है। बाद में अल्लाह की मर्जी जो होती है जिस चीज को वो क्लियर बता देते हैं। बस ईमान पुख्ता रखो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। अगर तुम ये दो शर्तें पूरी करोगे, ईमान में साबित कदम रहोगे और तकवा पर रहोगे, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है, ये बहुत बड़े सवाब की बात है, ठीक है। तो ये मुसलमानों को अगेन वही चीज कही गई कि देखो, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के ऊपर बहुत ज्यादा वो हो रहे थे कि जब रसूल हमारे बीच में था तो कैसे प्रॉब्लम आ गई और इन्होंने कैसे नहीं फोर्सी किया, इनको कैसे नहीं पता चला। तो उस चीज को क्लियर किया जा रहा है रसूलुल्लाह की सिचुएशन भी, कि उनको हर बात पहले से नहीं पता होती है। सही, अच्छा, और तुमने किस चीज पे पुख्ता रखना है, मुश्किल आए परेशानी आए तो क्या, अल्लाह पर ईमान और उसके रसूलों के ऊपर ईमान। अल्लाह की किताब और सुन्नत, इन दो चीजों को अगर अपनी हर मुश्किल में हम पकड़ के रखेंगे ना, तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमें ट्रस्ट इस चीज के ऊपर रखना है कि मैं अल्लाह के ऊपर साबित कदम रहूंगी तो तब ही मुझे बड़ा अजर मिलेगा। इस दुनिया में भी मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं भी मिला, कोई नजर आया कि इतनी दीनदार थी, इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा था, लेकिन सारी जिंदगी देखो कितनी मुश्किल में बेचारे ने गुजारी, मुश्किलात काटते काटते ही मर गए। तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि अगर वो सही ईमान पे थे तो उनको इंशाल्लाह अल्लाह ताला आखिरत में देंगे अजर। और आखिरत का अजर तो हमेशा के लिए है ना, खालिदीना फीहा अबदा वाला। तो वो अजर के ऊपर अगर हमारी नजर होगी तो दुनिया के अजर हमें अगर नहीं भी मिलते तो हमें यकीन है कि हमें आखिरत में उससे कहीं बेहतर हमेशगी वाला अजर मिलेगा। और जो लोग इस मालो दौलत में से देने में बुखल करते हैं, ठीक है, जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता किया है, वो हरगिज इस बुखल को अपने हक में बेहतर ख्याल ना करें। अब ये बात हो रही है उस टाइम पे कि जब इसमें फॉर एग्जांपल जब ओहद की तैयारी हो रही थी तो रसूलुल्लाह ने लोगों से मांगे थे क्या कहते हैं लोगों से डोनेशंस वगैरह मांगे थे, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर जिन लोगों ने
नफाक का काम किया, उन्होंने जिन्होंने अपने बुखल किया, जिन्होंने चीजें नहीं दी, ठीक है, तो उनको ये बात कही जा रही है कि ये उन बल हुआ शर्रुल लहुम, ये उनके हक में बहुत बुरा है। कोई माल अगर तुमने अपने पास जमा करके रखा और अल्लाह की राह में नहीं दिया, तो तब ये तुम्हारे हक में बहुत बुरा है। इसी माल के तौक बनाकर उनकी गर्दनों में पहनाए जाएंगे जिसमें उन्होंने बुखल किया था कयामत के दिन। अल्लाहुम्मा ला तजल मिनहुम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के ऐसी चीजों से दूर रखे। आप सोचें कि आज हमारे मुल्क में क्या हालात हुए हैं, कितने ज्यादा लोग सैलाब से बुरी तरीके से अफेक्टेड। और इस टाइम के ऊपर भी जो बहुत लोग खुले दिल से दे रहे हैं, लेकिन अगर इस टाइम के ऊपर भी कोई इसलिए छोड़ के रखता है कि छोड़ो क्या जरूरत है देने की, ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने पास रख लेती हैं, लोगों को नहीं देती हैं। भाई अगर आपको इतना ही मसला है तो आप खुद जाके वहां पे लोगों को देना शुरू कर दें। बट दिस इज द टाइम कि आप मदद करें। अगर आप मदद नहीं करते हैं और उस पैसे को बचा के रखते हैं कि कल को मुझे ये फायदा देगा, तो वो कल जो आएगी ना, उसके अंदर वो वही माल एक सांप बनाकर, एक तोक बना के, फांसी का फंदा बना के आपके गले में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला माफ करे हमें से। वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द, और आसमान और जमीन की विरासत बिलाखिर अल्लाह ही के लिए है। दुनिया का माल और असबाब आज जो तुम्हारे पास है, तो तुमने उसको अपने साथ कब्र में नहीं लेके जाना। आज तुम्हारे पास है तो कल किसी और के पास चला जाएगा। और इवेंचुअली सब कुछ तो अल्लाह के लिए ही है ना, अल्लाह ही के लिए रह जाएगा। आसमान और जमीन की जो मीरास है वो तो हकीकी तौर के ऊपर अल्लाह की ही है ना। इट स्टार्टेड विद अल्लाह एंड इट विल एंड विद अल्लाह। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उस बात से बाखबर है। यहाँ पे वो 6 रुकू कंप्लीट हो गए जो गजवा उहद के हालात और वाकयात और उन पे तबसरे के ऊपर मुश्तमिल थे। और इसके बाद इंशाल्लाह इस सूरह मुबारक के आखिरी 2 रुकू आएंगे जो कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे। ठीक है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने आज हमारे वक्त में इतनी वुसअत दी कि हमने इन दोनों अपना आज का जितना लेसन था उसको कंप्लीट कर दिया। अल्लाह अपनी बात को इस दुआ के साथ कंप्लीट करते हैं कि मेरे रब पाक परवरदिगार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे अल्लाह आपका एहसान है कि आज हम बैठे हैं। मेरे अल्लाह हमने जो जो पढ़ा है उसको हम अपनी जिंदगियों में शामिल कर लें। मेरे अल्लाह हमें हमें आप पे तवक्कल करने वाला बना। या अल्लाह हमारे तवक्कल को इतना स्ट्रांग बना दे कि हमें फिर दुनिया के सहारों की जरूरत ना रहे। या अल्लाह जिस वक्त वाकई जरूरत होती है, जिस वक्त हम परेशान होते हैं, तो उस वक्त हस्बी अल्लाह व निअमल वकील कहना भी आपकी तौफीक से आता है। मेरे अल्लाह हमारे दिलों में ईमान को इतना स्ट्रांग कर दे, हमारे ईमान हर वक्त डगमगाते रहते हैं, तो मेरे अल्लाह हमें हमें हमारे ईमानों को स्ट्रेंथन कर दे। हमारे दिलों को उलट फेर करने वाले मेरे रब हमारे दिलों को दीन के ऊपर फेर दे। मेरे दिल को अताअत के ऊपर फेर दे। या मुकल्लिबुल कुलूबी सब्बित कुलूबना अला ताअतिक, सब्बित कुलूबना अला दीन का। मेरे अल्लाह हमारे दिलों को अपने दीन के लिए खालिस कर दे। हमारे दिलों के अंदर किसी किस्म का नफाक ना आए। मेरे अल्लाह जिस वक्त आपकी दीन की जरूरत हो उस टाइम पे हम खुले दिल से मदद कर सकें। या अल्लाह हमारे मुल्क के इतने बुरे हालात हुए में हैं, इतने लोग सैलाब जदगान हैं, इतनी मुश्किल में हैं। या अल्लाह पॉलिटिकल इतना अनरेस्ट है। मेरे रब मेरे प्यारे रब हमारे मुल्क के ऊपर रहम कर, उम्मत मुस्लिमा के ऊपर रहम कर। या अल्लाह इतना पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इतनी इतनी डिप्रेसिंग किस्म की खबरें आ रही होती हैं। मेरे अल्लाह ये मुल्क आपने दिया था, इस मुल्क को आप बचाएं। या अल्लाह हमारे लोगों के दिलों में सिर्फ दीन से दूरी है, हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर भी, हमारे लोग जिसको जिस लेवल के ऊपर है वो अपनी लेवल की करप्शन कर रहा होता है। या अल्लाह हमारे लोगों के दिलों के अंदर दीन को गालिब कर दे, हमें तौफीक दे कि हम वाकई अच्छे मुसलमान बन सकें, और हमारे मुल्क के बारे में जितनी अहादीस है, जितने बड़े बड़े काम हमारे मुल्क से होने हैं, हम वो जनरेशन बन जाएं जो कि उन कामों को कर सकें। हम वो जनरेशन बन जाएं जो ऐसी ऐसे बेटों को पैदा करें जो उन अहादीस को पूरे करने वाले हों। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। खासुल खास मेरे रब, मेरे मामू मामानी बहुत बीमार हैं, अफशामा जी के पेरेंट्स। या अल्लाह उनको उनको सेहत तंदुरुस्ती सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। जो जो लोग भी बीमार हैं, जो जो लोग भी मुश्किलात में हैं, या अल्लाह सबकी मुश्किलात को दूर करना, सबका आना बैठना कबूल फरमा मेरे अल्लाह।
अजर दिया सबको, सबके दिलों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।